as teachers, good morning, as dear students. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. It is my great privilege and honor to introduce today's esteemed guest, Shri Jagdish Deshmukh, also known as Jagannath Yatra Dalji, who has graciously visited our Vidyalaya to guide us on the path of values and life skills. Shri Deshmukh is an alumnus of Jawahar Navodaya Vidyalaya, Jalgaon, Maharashtra, where he demonstrated academic excellence by securing first rank in class 10. He further continued his outstanding performance by achieving second rank in class 12 in the Nasik division of the state board. He pursued his B.Tech in mechanical engineering from the prestigious VJTI College, Mumbai in 2004. With a passion for teaching, he dedicated 8 years as a lecturer in reputed engineering colleges in Pune and Mumbai University. Since 2012, he has devoted his life fully to spiritual service as a member of International Society for Krishna Consciousness, Mumbai, actively spreading the timeless wisdom of the Bhagavad Gita in society. Over the past 3 years, Shri Deshmukh has visited an incredible 260 Jawahar Navodaya Vidyalayas across 28 states and 6 union territories covering 8 envious regions. They bring inspiring thoughts on life skills and values under the Indian knowledge system. In addition to this, he has reached out to more than 1,000 schools and colleges over the last 12 years, guiding students towards a meaningful, disciplined, and value-based life. His journey is truly inspiring, reflecting dedication, knowledge, and a deep commitment to shaping young minds. Dear students, let us extend a warm and heartfelt welcome to Shri Jagdish Deshmukh and make the most wonderful opportunity to learn from his valuable insights. Now, I would like to invite our Vice Principal Sir to come on the stage and extend a warm welcome to our honorable guest. आज के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय श्री जगदीश जी और श्री जगन्नाथ यात्रा वृतांत श्री देशमुख जी, प्यारे सहयोगियों और बच्चों, सुप्रभात, नमस्कार। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि एक नवोदय महाराष्ट्र में जलगांव के डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जहाँ के पढ़े हुए श्री जगन्नाथ जी आज हमारे बीच में वैल्यू एजुकेशन के ऊपर एक चर्चा जो है वो आपके साथ करेंगे। ये प्रोफेशन जो इन्होंने चुना, वैल्यू एजुकेशन खाली एक लेक्चर देने का नहीं है, एक लाइफ स्किल में उसको कैसे बदला जाए, ये इस सत्र की, इस सेशन की जो है वो विशेषता रहेगी। और जवाहर नवोदय विद्यालयों में कई सौ विद्यालयों में ये घूम चुके हैं और अपने कार्य को अंजाम दे चुके हैं। इवन जिस विद्यालय से मैंने अपनी यात्रा यहाँ शुरू किया, नवोदय विद्यालय समिति में, उस विद्यालय में भी ये अपना जो अमूल्य प्रवचन है, जो ज्ञान की गंगा बहाते हैं, वो बहा कर आए। सो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी स्टाफ मेंबर्स, बच्चे, इनका जो इंटरेक्टिव सेशन आपके साथ इसके बाद रहेगा, उसका फायदा जो है वो आपको जरूर मिलेगा। सो आप पूरी लगन के साथ इनको सुनिए, और एक सुनने का जब हम लोग बात करते हैं तो समझ के साथ सुनिए। क्योंकि ये चीज़ें हम लोग अगर 1000 रुपए भी कहीं हम कैंपों में जाते हैं और वहाँ फी देते हैं तो भी ये
प्राप्त नहीं होती हैं। यहाँ विद जीरो कॉस्ट, इनको हम किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं और ये अपनी यात्रा जो है वो निःशुल्क बनाए हुए हैं। इस तरह का व्यक्तित्व समाज में आज के समय में चूंकि अर्थ का जमाना है, अर्थ में इकोनॉमिक्स का जमाना है, जहाँ बिना पैसा तंत्र के कुछ भी क्रियाकलाप करना संभव नहीं है। ये एस्कॉन संस्था से जुड़े हुए हैं और विद जीरो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके बीच में अपनी बात रखेंगे लाइफ स्किल्स के ऊपर और वैल्यू एजुकेशन के ऊपर। तो आपका पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से सर अभिनंदन है, स्वागत है और ये हम उम्मीद करेंगे कि जितना देर का भी आपका इंटरेक्शन बच्चों के साथ, स्टाफ के साथ रहेगा, ये बहुत ही हाईली फ्रूटफुल होगा और जरूर हमारा विद्यालय जो है वो इससे लाभान्वित रहेगा। धन्यवाद। सभी बच्चे बैठ जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट सेशन जो है वो आपका थोड़ा लंबा चलने वाला है। ठीक है, आप टेकअप करो। हाँ, और हम लोग थोड़ा सा निकाल लेते हैं अपनी जो दैनिक दिनचर्या है। थैंक यू सर। ठीक है, आप पीछे। हाँ, ओके, ये बेस्ट। So, first of all, I thank our dear principal sir and all teachers for giving me kind shelter here at JNU Samba of Jammu Kashmir state. I wish you all good morning. I was very happy to be here to get the chance to serve you in whatever possible way. जम्मू कश्मीर बचपन से हम बहुत कुछ सुनते आए हैं और इच्छा थी कभी मैं जाऊं कभी, तो आज इतने सालों के बाद मैं आ पाया हूं पहली बार। तो मैं खुशी है कि आपकी सेवा के निमित्त हम आ पाए यहाँ पर। यदि नवोदय का हमें कनेक्शन नहीं होता तो हम जम्मू क्यों आते, नहीं आते। लेकिन जो बचपन से नवोदय से हमने कुछ ना पढ़ाई किया, तो उसके बाद ये जो कल्चर है कि हम पूरे देश को अपना मानते हैं, इसलिए जो 9th क्लास में जो बैच बन जाती है माइग्रेशन, तो उससे नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिली है। जैसे हम लोग हिमाचल में आते थे, कांगड़ा, हिमाचल में जो कांगड़ा जिला है वहाँ पे 2 साल का तब था माइग्रेशन, बाद में 1 साल का हो गया। तो नवोदय में एक जैसा माहौल पूरे देश में है, सभी लोग अपना मानते सबको। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि हम नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाए हैं एक एग्ज़ाम देकर। तो हमें इसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। पहली बात मैं बोल रहा हूँ कि हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि हमें जो मिला है, जो दिया गया है, वो अपना अधिकार नहीं है, ये अपना सौभाग्य है। सौभाग्य है कि हमें बस एक छोटी एग्ज़ाम देकर इतना सब सुविधा व्यवस्था, अच्छे ज्ञान लेने के लिए मिली है। और अपना जो मोटिवेशन है यहाँ आने के बाद, वो होना चाहिए कि हमें कुछ अच्छा सीखना है, अच्छा ज्ञान लेना है, अच्छा हमें कुछ समझना है। केवल किताबों का ज्ञान नहीं, इवन जीवन का भी जो प्रैक्टिकल बोलते हैं, व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज। जैसे यहाँ पे नवोदय में हमें स्पोर्ट्स, आर्ट्स, म्यूज़िक के लिए भी अच्छा प्रोत्साहन दिया जाता है कि जिसको जो है ना प्रतिभा है वैसा उसका ना विकास कर सकते हैं, अच्छा प्रोत्साहन दिया जाता है। अभी जैसे मैं जानता हूँ कि इस महीने में स्पोर्ट्स इवेंट चल रहे हैं, क्लस्टर हो चुका है, अभी रीजनल कल से चालू होगा, बाद में नेशनल भी होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं बच्चों को बड़ा उत्साह देती है, बड़ा अच्छा एक प्रेरणा देती है। यदि हम ये सौभाग्य नहीं मानेंगे कि अपना सौभाग्य है कि हमें मौका मिला है, तो फिर हम जो सौभाग्य मिला है, जो चीज़ मिला है, उसका उपयोग नहीं ले पाएंगे। हम कंप्लेंट करते रहेंगे, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये कम मिला, ये लेट मिला, ऐसा सोचेंगे। हाँ,
कुछ कभी कभी समस्याएं होती है सब जगह, उसको स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं कि कंप्लेंट करके बड़ा दुखी डिस्टर्ब होना है, नहीं। जो मिला है वो भी कम नहीं होता है, हमें जो कभी मिलता है वो भी कम नहीं होता है। जो नहीं मिला उसके लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं। पॉजिटिव जो चीज़ बोलते हैं, बी पॉजिटिव। जो मिला है उसके लिए सुख लीजिए, सुख मानिए कि जो मिला है वो भी कम नहीं है। तो पहला जीवन मूल्यों के विषय में हम ये बोलते हैं कि सबसे बड़ा मूल्य, वैल्यू, कृतज्ञ होना है। बीइंग थैंकफुल, ग्रेटफुल इज़ द हाईएस्ट वैल्यू जो हम अपने जीवन में दिखा सकते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इफ़ वन इज़ नॉट ग्रेटफुल ही बिकम्स द ग्रेट फूल, ऐसे बोलते हैं। इफ़ वन इज़ नॉट ग्रेटफुल, थैंकफुल, ही बिकम्स द ग्रेट फूल। वो मूर्ख बन जाता है, क्योंकि मैं जो पहले बताया वो कंप्लेन करता रहता है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, और जो मिला है उसका उपयोग नहीं लेता। तो ये हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम धन्यवाद, आभार ना व्यक्त करें। आभार व्यक्त करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा आभार तो भगवान का ही करना चाहिए। क्यों? भगवान है तो हम हैं, दुनिया है और सब कुछ है। कभी वो गाते हैं ना कभी कि ये तो सच है कि भगवान है, माता पिता उसकी पहचान है। कभी तो हम प्रेयर गाते हैं ना उधर में, कभी तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम गाते कभी यहाँ पे सुना तो होगा। हाँ, यस, कि किसको बोलते हैं? माता पिता अपने गांव में है, अपने घर में है। यहाँ किसको बोलते हैं? तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा। देखो, जैसे मैं आज आपके कैंपस में जो आया हूँ, तो मैं आपके साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना भी किया, आपके साथ मैंने हाथ आगे करके प्रतिज्ञा भी लिया। आपने देखा, नोटिस किया होगा, वो जो गेस्ट आए हैं वो भी हाथ जोड़ के प्रतिज्ञा, मतलब प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ आगे करके प्रतिज्ञा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें जानते हैं ये केवल स्कूल के बच्चों के लिए काम नहीं है। और ये तो क्या है, स्कूल में ऐसा एक काम होता है, सुबह सुबह कुछ हाथ जोड़ना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। हमें उसका भाव को समझना चाहिए। प्रार्थना हमें शक्ति देती है, प्रार्थना हमें शक्ति देती है। जब भगवान के सामने हाथ ना जोड़े, दुनिया के सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, सबसे भीख मांगनी पड़ती है दुनिया में। ये मांगना ही है तो भगवान से क्यों ना मांगे, जो अपना माता पिता सब कुछ है, जो कभी अपना साथ छोड़ते नहीं हैं, हमें कभी दूर नहीं करते हैं। क्योंकि दुनिया में कुछ परमानेंट है, दुनिया में कुछ परमानेंट है तो भगवान ही है, जो दुनिया बनाते भी है, दुनिया चलाते भी है। आप बोलेंगे कौन देखा है? तो क्या देखने की बात है, आपके लाग में जाके कैसे दुनिया बनती है। दुनिया इतना अनंत कोटि ब्रह्मांडों का है, कैसे समझ में आएगा आपको? यदि भगवान स्वयं ज्ञान दे, जो दुनिया बनाया है कि वो ज्ञान दे, दुनिया कब बनी, दुनिया कैसे बनी, दुनिया क्यों बनी, दुनिया कौन बनाया, ये तो सवाल होते हैं सबके मन में। कभी मॉडर्न साइंस जो है, जो ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम का एक भाग है, जब देश गुलाम था 200 साल 150 साल, तो अपनी शिक्षा पद्धति बदल दी गई, सिलेबस बदल दिए गए, भाषा बदल दी गई, कल्चर बदल दिए गए। तो आज हम सोचते हैं ये जो सब अपने पास कुछ ज्ञान है ही नहीं, सब विदेशों से ज्ञान आए हैं, सब सोचते हैं। इस देश का सबसे पहला विज्ञान वेद है, वेद, जिसे हम विद्या की देवता मानते हैं, देवी सरस्वती, उनके हाथ में वेद ही होते हैं। वेद, वेद मतलब ज्ञान, जो स्वयं भगवान दिए हैं। भगवान किसे कहते हैं? ये दुनिया बनाता है, बनाया है, कल बनाता नहीं, उसे चलाता भी है, आज भी है। हम सबके साथ भी भगवान होते हैं। अभी ये लैब में जाके केमिकल मॉलिक्यूल्स लेके टेस्टिंग नहीं किया जा सकता। जैसे किसी बच्चे को जानना है मेरा पिताजी कौन है, तो माँ ज्ञान देती है,
माँ ही ज्ञान दे सकती है बच्चे को कि मुन्ना ये तेरा पापा है, ये तेरा भाई है, भैया, ये तेरी दीदी है। माँ ना ज्ञान दे बच्चों को, तो बच्चे को कैसे पता लगेगा उसका पिताजी कौन है? वो क्या लैब में जाकर टेस्टिंग करेगा कि हाँ रिसर्च करने से पता पापा कौन है पता लग जाएगा? नहीं, जो जानता है वो ज्ञान देगा तो ज्ञान होता है। वैसे ही लॉजिक रिदम लगाएं, दुनिया जो बनाए हैं, सबको जो जन्म देते हैं, यदि वो ज्ञान दे तो ज्ञान हो सकता है। दुनिया कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनी, कौन बनाया? न कि वो डार्विन, न कि वो कोई बिग बैंग थ्योरी वाला वो बता सकेगा कि दुनिया कैसे बनी। ये लोग कल्पनाएँ किए हैं। बिग बैंग थ्योरी जो हमने कभी सिलेबस में पढ़ा था, हमें समझना होगा। आज जो हम साइंस की किताब में कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ चीज़ें, वो थ्योरी है, थ्योरी, विशेषतः 2 थ्योरी जिसने बड़ा नुकसान किया है। और दुनिया में कोई देश में सिखाया नहीं जाता है साइंस की किताब में। ब्रिटिशों ने हमें गुलाम बनाने के लिए, हमें कमज़ोर करने के लिए जानबूझकर जो थ्योरी है साइंस की किताब में डाल दिया। कौन सी थ्योरी? कि दुनिया कैसे बनी, तो बिग बैंग थ्योरी, कि बड़े विस्फोट से दुनिया अपने आप बन गई, कोई बनाने वाला नहीं है, कोई उसके पीछे उद्देश्य नहीं है, अपने आप बिग बैंग एक्सप्लोजन हो गया, विस्फोट हो गया। जिसके देखो हमसे थोड़ा बुद्धि लगाएंगे समझ में आएगा। ऐसा कभी सेंस भी नहीं उसमें कोई कि कुछ नहीं था, विस्फोट हो गया और दुनिया बन गई, सब अनंत कोटि ब्रह्मांड बन गए। ऐसे कैसे बन सकता है? विस्फोट से कैसे बन सकता है कुछ? देखिए, नवोदय के बच्चे बड़े अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। आप लोग बनाते होंगे पेंटिंग्स। प्रत्येक पेंटिंग के नीचे नाम, क्लास आप लोग लिखते हैं, कौन बनाया है पेंटिंग, और बोलते हैं वाओ सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल पेंटिंग, कितना सुंदर पेंटिंग बनाया है। एक कौन बनाया? ये कोई बनाता थोड़ी सर। ये जब बच्चे होली के उत्सव में रंग उड़ाए थे, फेंके थे, वो रंग ऐसे ही अपने आप पेंटिंग बना दी। असल सोचता है पेंटिंग, सादा पेंटिंग बनाने के लिए भी थोड़ी बुद्धि, कला, कोई व्यक्ति कलाकार लगता है, कोई सोच विचार लगता है। इतना सुंदर अद्भुत दुनिया बनाने के लिए बस एक विस्फोट ऐसे कैसे हो सकता है? एक छोटी सी स्कूल नवोदय विद्यालय चलाने के लिए कितनी कमेटियाँ होती है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कितने हाउस मास्टर्स, कितने क्लास टीचर्स, कितने हाउस कैप्टन्स होते हैं, मॉनिटर्स होते, क्लास मॉनिटर्स, मेज़ का कमेटी होता है। ये सब होने के बाद भी कुछ ना कुछ समस्याएं चलती रहती है, प्रॉब्लम चलते रहते हैं। और यदि कोई ना हो ये सब चलाने के लिए तो कैसे चलेगा? और इतना अनंत दुनिया चलाने के लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा, कोई कंट्रोलर नहीं होगा। ये कैसे हम ऐसा सोच सकते हैं? दुर्भाग्य क्या हुआ है कि हम इतिहास के नाम पर भी जो कुछ पढ़ते हैं वो ब्रिटिशों ने बनाया हुआ इतिहास है, ताकि हम अपना ही इतिहास को झूठा कहें, अपने ही परंपराओं को हम नीचा कहें। ऐसा ही हुआ है कि हम अपनी सभ्यता जो महान विरासत है उसको हम छोटा समझते हैं और सोचते हैं ब्रिटिश कल्चर इज़ द हाई कल्चर, ऐसा सोचते हैं, क्योंकि हमें अपना मूल संस्कृति का ज्ञान आज नहीं है। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है, संस्कृत, जिसमें दुनिया का सब ज्ञान विज्ञान पहले से है और सारी संस्कृति भी उसी से आई है, संस्कृत भाषा से। लेकिन ब्रिटिशों ने पहला काम किया था, गुरुकुल जो शिक्षा देते थे पूरे देश में, लाखों की संख्या में गुरुकुल थे, गाँव में गुरुकुल थे, लड़कियों के अलग होते थे, लड़कों के अलग होते थे, सबको बंद करवा दिया और कॉन्वेंट स्कूल खोलकर हमें विदेशी बना दिया। जब गुरुकुल शिक्षा पद्धति बदल दी गई, सिलेबस बदल दी गए, इतिहास बदल दी गए। जैसे हम इतिहास में अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं 4 युग होते हैं, 4 युग। कलियुग जो चल रहा है, जो 5000 साल से चालू है, 5000 साल से चालू है, जो महाभारत के युद्ध होने के बाद शुरू हुआ कलियुग। उसके पहले था द्वापर युग। उसके पहले कौन सा युग था? त्रेता युग। और पहला युग कौन सा होता है? सतयुग। ये साइकिल होती है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा। जैसे संडे के बाद मंडे आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, ये सप्ताह में साइकिल चलता रहता है। वैसे ही
युग भी चलते रहते हैं एक के बाद एक। जैसे अभी ये समर सीज़न है, बाद में मानसून आएगा, मानसून के बाद विंटर आएगा, चलता रहता है। वैसे युग जो है चलते रहते हैं। लेकिन आज के इतिहास में युगों की बात नहीं कही जाती कि 4 युग होते हैं, कैसे कहेंगे? क्योंकि ये तो वैदिक साहित्य का ज्ञान है, इतिहास। तो ये अलग नाम देकर कुछ तो ऐसे लोह युग और क्या ताम्र युग ऐसे नाम दे दिए कि जो मूल जो ज्ञान इतिहास था उससे हटा दिया गया। इसलिए क्या हुआ, हम जो शिक्षा लेते हैं उसमें संस्कार, मूल्य, नीति का कोई भाग नहीं है, केवल व्यावसायिक शिक्षा हो गई है। शिक्षा का उद्देश्य मुख्य जीवन का ज्ञान पाना है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीवन को समझना है, चरित्र निर्माण करना है। आज की शिक्षा मुख्यतः व्यावसायिक हो गई है, प्रोफेशनल बोलते हैं, प्रोफेशनल, वोकेशनल। केवल एक जॉब पाने के लिए इतना एग्ज़ाम्स, इतना कंपटीशन, इतना टेंशन एक होता है। एक जॉब पाना कोई बड़ी बात नहीं है। सबको इतनी बुद्धि है कि हम जॉब क्या, हजारों हम व्यवसाय कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं, हजारों व्यवसाय कर सकते हैं, अपने हिसाब से, अपनी जगह पे, अपनी अपनी स्वभाव के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन जब अपना बुद्धि ढक गया है तो हम केवल दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। कोई मुझे जॉब दे, कोई मुझे नौकरी दे, ऐसा सोचते हैं। तो उसके लिए इतना कॉम्पिटिशन है। यदि अपनी बुद्धि जग जाए तो हम हजारों काम कर सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं और अपने जीवन का बड़ा सुख पा सकते हैं। जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है, तो छोटी चीज़ है। आप देखिए कि दुनिया में जितने भी जीव है, पशु पंछी, लाखों जीव है, लाखों प्रकार के जीव है, इनमें किसी को कॉलेज में, स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी को जॉब के लिए, हाथी घोड़े कभी जॉब के लिए गए, एप्लीकेशन किए, ऐसे नहीं होता है। वो अपना बुद्धि से अपना जीवन अपनी जगह पे अच्छे से जी लेते हैं। उल्टा जब कोई मनुष्य जो है इनको अपना पकड़ लेता है, इनको गुलाम बना देता है, तो उनका जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे गधा का भी ना, कोई जो मनुष्य होता है, आदमी होता है, कभी गधे को पकड़ लेते हैं, घोड़े को पकड़ लेते हैं, बांध देते हैं और अपने पैसे अपने लिए उसका उपयोग, शोषण करते हैं, शोषण किया जाता है। जबकि गधा मुक्त रूप से जंगल में, दुनिया में घास खा सकता है, अपना जीवन जी सकता है। इन थोड़े से घास के लिए वो दिन भर बोझ उठाता है। क्यों? मनुष्य ने उसे पकड़ लिया, उसे गुलाम बना दिया। मेरा बोलने का उद्देश्य है, हमें अपने जीवन को समझना आवश्यक है। क्यों? हम जीवन में जो चाहते हैं, पता होना चाहिए हम क्या चाहते हैं। हम जीवन में सुख समाधान चाहते हैं, और 2 दिन का नहीं, नया नया सुख नहीं, टिकने वाला। हम अनंत सुख समाधान चाहते हैं। अनंत मतलब अनएंडिंग, जिसका अंत ना हो। अभी हम में से सभी लोग जो है, कोई बूढ़ा बनना चाहता है? बोलिए, कोई बूढ़ा बनना नहीं चाहता। कोई बीमार होना नहीं चाहता। कोई मृत्यु नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हमें समझना होगा, हमें हड्डी मांस की बॉडी नहीं है जो समय के साथ बूढ़ी होती जाती है। ये बॉडी समय के साथ बीमार और मृत्यु पाती है, बीमार हो जाती है और मृत्यु पाती है। हड्डी मांस की बॉडी जो हम नहीं हैं, अपनी गाड़ी है। ये समझना होगा कि हम कौन हैं। आज की शिक्षा में, सिलेबस में जीवन का ज्ञान नहीं है। बायोलॉजी में भी बोलते हैं जीव विज्ञान, बायोलॉजी को हिंदी में कह देते हैं जीव विज्ञान। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस बायोलॉजी में या आगे मेडिकल साइंस में भी, MBBS, MD, MS कोर्स में भी केवल बॉडी का ही स्टडी है। बॉडी के अलावा मन, जो सबका होता है, मन, बुद्धि, अहंकार, इनका कोई चर्चा नहीं है, ज्ञान नहीं है। और जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता, वो जीव, आत्मा का कोई उल्लेख भी नहीं है। ये बड़ा दोष है। तो ऐसा शिक्षा पद्धति बना दिया, ऐसा सिलेबस बना दिया कि हम
स्वयं को ना जान पाए, हमें आत्मज्ञान ना हो, बस हम बॉडी को अपना स्वयं माने, ये बड़ा दोष है। जैसे पशु जो होते हैं, पशु कुत्ता गधा जो भी समझो है पशु है, वो ऐसा सोचते हैं कि जो बॉडी उनका है वो है। कुत्ता सोचता वो कुत्ता ही है, वो कभी कुत्ता समझ नहीं पाएगा कि मैं कुत्ता क्यों बन गया, और आत्मा क्या होती है, जीवन क्या होता है, वो बस खाना पीना सोना इतने ही सोचते हैं। पशु कभी जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमें क्या पाना है, ये सोच नहीं पाते। मनुष्य ऐसा एक विशेष जन्म है जहाँ पर हम आत्मज्ञान ले सकते हैं, आत्मज्ञान, और यही ज्ञान सबसे मूल्यवान है, सबसे महान है। जैसे अपने समिति के लोगों में 2 शब्द है, नीचे 2 शब्द है समिति के लोगों में, प्रज्ञानम, क्या शब्द है बेटा, याद रखो, प्रज्ञानम ब्रह्म, बोलो प्रज्ञानम ब्रह्म। इसका मतलब कोई सोचा है, कोई जानता है क्या मतलब होता है प्रज्ञानम ब्रह्म का? हम इतने मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री की, ये 2 शब्द है बस। समिति के लोगों में अपने टी शर्ट्स पे होता है, अपनी नोटबुक्स पे होता है, सब जगह हम प्रज्ञानम ब्रह्म तो देखते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं ये इसका मतलब क्या हो सकता है। स्कूल में, जैसे नवोदय स्कूल में बहुत अच्छा सुंदर सब जगह कोटेशंस लगी होती है, सुविचार लगे होते हैं, हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमें बड़ा ताकत देता है। मैथ्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जो सुविचार होते हैं, ये हमें जीवन की ताकत देते हैं, जीवन का बड़ा दिशा देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। हाँ, वो शिक्षा सही चाहिए, यदि शिक्षा सही ना हो तो दुनिया बिगड़ भी जा सकती है, बिगड़ भी जाती है। वैसे ही हुआ है जब ब्रिटिशों ने शिक्षा पद्धति ऐसी बनाई ताकि ये देश जो है कमज़ोर हो जाए। आप देखिए आज लोग इंजीनियर तो बनते हैं, डॉक्टर तो बनते हैं, ऑफिसर तो बनते हैं, लेकिन नशा से मुक्त जीवन नहीं जी पाते, नशा को ना नहीं बोल पाते। हम जब बीटेक किए मुंबई में, कॉलेज बड़ा प्रसिद्ध था, VJTI कॉलेज मुंबई का, जहाँ 98-99 मार्क्स वाले बच्चे आते हैं एडमिशन के लिए ऑल इंडिया। उनमें से भी 25 साल पहले की बात है, आधे बच्चे हॉस्टल्स में सेकंड ईयर में नशा के शिकार होकर हमने देखा था। और थोड़ा आजकल तो गाँव में, शहरों में, कॉलेज स्कूलों में भी नशा का बड़ा प्रभाव बढ़ गया है। हम उच्च शिक्षा जो ले रहे हैं, उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन, MBBS, MD, MS कोर्स तो कर रहे हैं, BTech, MTech, लेकिन सही क्या है गलत क्या है नहीं समझ पा रहे हैं, जीवन में आत्मसंयम नहीं दिखा पा रहे हैं। यदि MBBS डॉक्टर बनने वाले बच्चे जो है पढ़ाई के साथ साथ नशा, बीड़ी फूकेंगे, बीड़ी सिगरेट जो होती है, गुटखा तंबाकू खाएंगे, ड्रग्स लेंगे, शराब पिएंगे, तो क्या वो समाज के लिए अच्छा सेवा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ना खुद को भी अच्छा बना पाएंगे, ना कुछ अच्छे से काम कर पाएंगे। हमने जो देखा, कभी लगा था कि हमें मेरी सेवा करने की इच्छा है तो मुझे शिक्षक बनना चाहिए, तो मैं बीटेक के बाद जो IAS बनने का सपना था वो भी छोड़कर हम शिक्षक बने थे 8 साल तक। जहाँ बच्चे बिगड़ जाते हैं वही हम थोड़ा उनको जीवन का ज्ञान देकर सही दिशा दे सकते हैं, ये हमने समझा था तभी। और जब मुझे जॉब की आवश्यकता नहीं थी, हम जॉब छोड़कर पूर्ण समय सेवा के लिए अपना लगाए पिछले 14 साल से। क्यों इसकी आवश्यकता है कि लोग जानें अपना सुख समाधान कहाँ पे है। अपना सुख समाधान बाहर चीज़ों में नहीं है, ना बॉडी में है, अपना सुख समाधान अपने पास है। अपने पास कैसे है? क्योंकि हम जो है वो आत्मा है। मैं जो बोल रहा था प्रज्ञानम ब्रह्म, इसका मतलब यही है, ये जो उपनिषद के शब्द हैं, उपनिषद क्या होता है? वेदों का एक सेक्शन है, विभाग, जिसे बोलते हैं तत्वज्ञान, फिलोसॉफिकल नॉलेज, तत्वज्ञान, फिलोसॉफिकल नॉलेज। ऐसे 108 उपनिषद है, उसमें एक है ऐतरेय उपनिषद, उसमें एक शब्द है प्रज्ञानम ब्रह्म, वो लिए गए हैं। इसका मतलब ये है ज्ञान, ज्ञानम, ज्ञान जो अनेक प्रकार का, सब प्रकार का ज्ञान होता है, उसमें सबसे प्रसिद्ध
प्रख्यात ज्ञान, प्रख्यात प्रसिद्ध ज्ञान, सबसे महान ज्ञान, प्रज्ञानम क्या है? ब्रह्म ज्ञान। पहले ज्ञान आया है तो आगे ब्रह्म के आगे ज्ञान वापिस नहीं आया है। समझने की बात है, ज्ञान की बात तो ब्रह्म ज्ञान, सबसे महान ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म जो हम हैं, जीव आत्मा, उससे कहते हैं। जैसे वेदों में कहा गया कि हम सभी ये बोल सकते हैं। आप पीछे बोलिए, बोल सकते हैं अहम, बोलिए अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये कहा गया कि हम ये बोल सकते हैं कि मैं कौन हूँ? तो मैं ब्रह्म हूँ, मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये बोल सकते हैं। ये नहीं बोल सकते कि मैं बॉडी हूँ, मैं शरीर हूँ, ये नहीं बोल सकते। संस्कृत में लिख सकते हैं अहम देह अस्मि, अहम मन अस्मि, अहम बुद्धि अस्मि, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा बोलते नहीं है। क्यों? हम वो मन बुद्धि शरीर नहीं है, ये अपनी शक्तियाँ हैं। ये अपनी क्या है? शक्तियाँ। तो ऐसे बोलता है आई एम सर शिवालिक बॉडी, आई एम उदयगिरी बॉडी, वैसे बोलता है? नहीं, बोलते माई हाउस नेम इज शिवालिक, माई हाउस नेम इज उदयगिरी, ऐसे बोलते हैं। मतलब हाउस अलग है, हम अलग है। वैसे हम बोलते हैं दिस इज माई बॉडी, माई हैंड, माई हेड, मतलब हैंड अलग है, हम अलग है, बॉडी अलग है, हम अलग है। जैसे माई व्हीकल, माई टेबल, माई ना, ऐसा जो भी बोलते हैं कि माई बैग, माई हाउस। तो ये समझिए अपनी पहचान, हम जो है वो अविनाशी, अजन्म, अजर, अमर जीव है, आत्मा है। जीव होता है तो जीवन होता है। जैसा कि ये जो पोडियम है, हमें ये अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें जीवन नहीं है, और अपने बॉडी में जीवन है। क्यों? इसमें जीव नहीं है, हम में जीव है, मतलब बॉडी में जीव है। जैसे डेड बॉडी, बस अंतिम 5 मिनट है, थोड़ा आपको सुनना है, कुछ समझ में आ रहा है। कुछ बातें में थोड़ी हेवी बातें हैं, नहीं इतना भी कोई हेवी नहीं है, थोड़ा हम अपना शांति से सुने तो समझ में आएगा। हाँ, कुछ तो इसमें काम की बात है, समझने की आवश्यकता है। कि जैसे डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी में सभी पार्ट्स होते हैं, हाथ होता है, सिर होता है, सब कुछ होता, आँखें होती है, कान होता है, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ नहीं होता है। जैसे कि बच्चे बोलते, कभी घर में हमें सुना है ऐसा बोलते ना, दादाजी हमें छोड़ के चले गए। क्या बोलते हैं? दादी हमें छोड़ के चली गई। ये कौन है? सोया हुआ, ये डेड बॉडी है, ये दादी नहीं है, दादी चली गई, दादाजी चले गए। हाँ, ये दादाजी नहीं है, नहीं दादाजी नहीं है, दादाजी चले गए। और हम प्रेयर करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसा बोलते हैं। मे गॉड ब्लेस द डिपार्टेड सोल, ऐसा बोलते हैं। और ये जो ये कौन है? ये डेड बॉडी, ये भी हम अभी जला देंगे या दफन कर देंगे, ऐसा बोलते हैं। क्यों? समझने की आवश्यकता है कि दादाजी अपनी कोई जो अपने होते हैं वो बॉडी नहीं है, बॉडी में रहने वाले एक व्यक्ति है, जीव है। जब तक हमें समझेंगे नहीं कि वैल्यू जो है, कीमत बॉडी की नहीं है, आत्मा की है, व्यक्ति की है, ह्यूमन वैल्यूज़, लाइफ वैल्यूज़। देखो बॉडी का वैल्यू 0 कभी जब उसमें जीव नहीं होता। लेकिन डेड बॉडी कोई अपने घर में एक दिन भी नहीं रखते। जिसको सालों से पाला पोसा बड़ा किया, उसको संभाला, इतना ध्यान दिया, प्रेम किया, उसकी सेवा की, उसका बॉडी हम एक दिन भी घर में नहीं रखते। सोचने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि कोई उपयोग नहीं है। जो अपना व्यक्ति था वो चला गया, वो चला जाने के बाद बॉडी का वैल्यू क्या होता है? 0। लेकिन हम अज्ञान की वजह से पूरा ज़िंदगी बॉडी को ही कीमत देते हैं, और जो बॉडी के अंदर जो व्यक्ति है उसका सोचते ही नहीं है। ये थोड़ा समस्या है, प्रॉब्लम है। यदि हमें सही में जीवन को समझना है,
तो ये समझना होगा जीवन किसकी वजह से है। जीवन बॉडी की वजह से नहीं है, जीवन जीव की वजह से है। जहाँ जीव होता है वहाँ जीवन होता है, जहाँ जीव नहीं वहाँ जीवन नहीं। जो मैं एग्जांपल दिया था पोडियम का, इसमें जीव है क्या? नहीं। इसे क्या बोलते हैं? निर्जीव। क्या बोलते हैं हिंदी में? निर्जीव। अपने बॉडी को क्या बोलते हैं? सजीव, है ना। पेड़ पौधे को भी क्या बोलते हैं? सजीव। क्यों? सजीव का मतलब जहाँ जीव है वो सजीव, जहाँ जीव नहीं वो निर्जीव, सिंपल। और इसलिए जब हम इच्छा करते हैं मैं बूढ़ा नहीं बनना चाहिए, मुझे बीमारी नहीं चाहिए, मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मुझे जीना है हमेशा, तो ये होता है। क्यों? क्योंकि हम जीव है जो कभी बूढ़ा नहीं बनता, जीव कभी बदलता ही नहीं है, जीव कभी जन्म नहीं लेता। जन्म लेता है शरीर, जन्म होता है बॉडी का, आत्मा का जन्म नहीं होता। आत्मा तो अजन्मा भगवान जैसा है। अंतिम बात ये समझो कि यदि हम ये समझे हम जो कोई है वो जीव उसे कहते हैं। कभी कभी ऐसे होता है किसी के हाथ पांव कट जाते हैं, कोई हादसे में किसी के हाथ पांव कट जाते हैं, किसी का चेहरा जल जाता है, तब भी घर वाले क्या बोलते हैं? ये हमारा आदमी है, हमारा व्यक्ति है। ये नहीं बोलते हमारा आदमी को 2 हाथ और 2 पाँव, इसका एक हाथ पाँव कट गया तो ये हमारा आदमी नहीं है। आदमी हाथ पाँव वाला नहीं है, आदमी जो अंदर बैठा है ना वो है जो कभी बदलता नहीं। जैसे हम सभी जो जन्म लिए थे, मतलब हम सबका जो जन्म हुआ, तो अपना बॉडी वो समय कितना बड़ा होता है? बस 2 हाथ का होता है, छोटा सा बच्चा होता है मुन्ना, 2 हाथ का बच्चा। अभी बॉडी समय के साथ एकदम बदल गई है। आपका चेहरा, आपका साइज, आपकी शक्ति, आपका मन, आपकी बुद्धि सब बदल गया है। लेकिन माता पिता कभी नहीं कहेंगे कि हमारा बच्चा नहीं सर, हमारा बच्चा कल मुन्ना था जो जन्म लेके आया था 2 दिन का, 2 ना हाथ का। बॉडी बदलने से आत्मा जो व्यक्ति हम हैं वो बदलता। तो ये मैं इतना वो एग्जाम्पल क्यों दिया? समझाने के लिए कि हम जाने हम है कौन। हम वो जीव है जो समय के साथ बदलता नहीं, ना बूढ़ा बनता है, ना बीमार होता है, ना जिसमें कभी कोई दोष होता है, ना कोई समस्या होती है। दोष बॉडी में होते हैं, कमियां बॉडी में होती है, बुढ़ापा बॉडी को आता है, आत्मा को कोई बुढ़ापा नहीं आता। तो ये कहा गया, ये जो ज्ञान है आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान सबसे महान ज्ञान है। प्रज्ञानम ब्रह्म ज्ञान सबसे महान ज्ञान। इसलिए अपना जीवन दे दिया हमने इस ज्ञान को बांटने के लिए, क्योंकि इसी ज्ञान से हमें जीवन का सुख समाधान सदा होने वाला मिल सकता है। बॉडी का सुख समाधान तो क्या है? थोड़े समय का होता है, थोड़े समय का। जैसे सोचते हैं खाना पीना बहुत अच्छा लगता है, कितना समय खा सकते हैं? जब थोड़ी भूख होती है तभी खा सकते हैं। जब भूख ना हो तो गुलाब जामुन का भी देखने का मन नहीं होता है। क्यों? स्वाद जो लगता है खाने में कब लगता है? जब भूख होती है। भूख ना हो तो गुलाब जामुन भी कोई स्वाद नहीं देता। तो ये समझो बॉडी का सुख टिकता नहीं है, लेकिन जो आत्मा का सुख है वो सदा टिकता है। क्यों? आत्मा सदा टिकती है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा न बदलने वाली। तो इसलिए कहा गया आत्मा का स्वभाव जो है, पीछे बोल सकते हैं, सत, बोलो सत चित आनंद, तीनों को इकट्ठे जोड़ने से हुआ सच्चिदानंद। ये अपना स्वभाव है, स्वभाव, नेचर आत्मा का। क्या? सत मतलब न बदलने वाला, सत्य, चित चिन्मय, ज्ञानमय और आनंदमय। बॉडी का स्वभाव क्या है? उल्टा, अपोजिट है। बॉडी है असत, न टिकने वाला, नाशवान। कभी वो गाना सुना होगा ना, जिंदगी एक सफर, हाँ ऐसा। आगे यहाँ कल क्या हो। तो ये जो चीज़ें हैं समझना है, बॉडी का पता नहीं, भरोसा क्या कोई नहीं है कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। लेकिन जब जानेंगे हम जो है वो सदा होने वाला है तो आपको भय नहीं होगा।
मृत्यु का भय नहीं होगा, कितनी बड़ी बात है। पूरा दुनिया को मृत्यु का भय होता है, लेकिन जिसको ज्ञान है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम किसके हैं, उससे भय नहीं होगा। जैसे आप लोग जो जानते हैं नवोदय में जो आए हैं, आप कहाँ से आए हो, आप किसके हो, आप कौन हो, क्यों आए हो, कितने समय के लिए आए हो, तो आपको यहाँ से जाने के लिए भय नहीं होता, यहाँ से जाने के लिए आपको डर नहीं लगता, चिंता नहीं होती है, उल्टा खुश होते हैं जब वैकेशन का समय आता है। नाचते नाचते बच्चे जाते हैं कि गांव जाएंगे, गांव जाएंगे, अपने गांव जाएंगे। तो बच्चों, जैसे हम स्कूल में जो अनुभव करते हैं, हम यहाँ पहले से नहीं हैं, यहाँ पे आए हुए हैं थोड़े समय के लिए, वैसे जीवन का भी है। दुनिया में हम पहले से नहीं हैं, बॉडी में दुनिया में आए हुए हैं थोड़े समय पहले, बस अभी याद नहीं हम कहाँ से आए हैं, याद नहीं, हम भूल गए हैं, हम याद नहीं। तो भगवान चाहते हैं कि हम जानें, तो भगवान हमें याद दिलाते हैं। कैसे? भगवद गीता, वेद, उपनिषद में ये ज्ञान दिए हैं। जो अपने माता पिता है, जो चाहते हैं कि हम जो उनको छोड़ के दुनिया में आए वापिस भी जाए। यदि भगवान गाना गाए तो ऐसा गा सकते हैं कि घर राजा परदेसी तेरा देश बुलाए है। अपना देश, आत्मा का स्वदेश दुनिया नहीं है जो टेम्पररी और बड़ा दुखदायक होता है। अपना परमानेंट देश, स्वदेश, भगवान का धाम, हम जहाँ से आए हुए हैं, बस अभी हमें याद नहीं है और याद आएगा। कभी कभी ऐसे होता है, किसी की याददाश्त चली जाती है चोट लगने से, तो कुछ उसको ना बता ज्ञान दे देकर, पिछला कुछ दिखाकर याददाश्त वापस लाते हैं। वैसे ही ये जो ज्ञान है जो भगवान दिए हैं, पर आप पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो अपनी याददाश्त आत्मा की कि हम कौन, कहाँ से, कब आए, क्यों आए, सब कुछ वापस आ सकते हैं। तो बस मुझे ये बोलना था लाइफ वैल्यूज़ के विषय में। अपने जीवन का मूल्य अनंत है, अनंत, अनलिमिटेड। दुनिया का कोई संपत्ति इसको, जीवन को खरीद नहीं सकता, क्योंकि वो परमानेंट है, वो दिव्य है, भगवान की देन है। ये समझने से हमें जो आत्मज्ञान से आत्मबल मिलेगा, आत्मबल बड़ा हमें काम में आएगा। आत्मबल हमें गलत चीज़ों से बचाएगा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। ये हो पाएगा, हम शक्ति भी ले पाएंगे भगवान से और सही राह पे चल पाएंगे। हम कभी गलत संगति में फंसेंगे नहीं। आज जो हो जाता है, कभी बच्चे फंस जाते हैं गलत संगति में, गलत प्रभाव में आ जाते हैं, तो नहीं होगा। क्यों? आपका बल है। जब आत्मज्ञान से आत्मबल होगा, आत्मविश्वास और आत्मसंयम होगा, आपकी बुद्धि में विवेक होगा, आप सही क्या है, गलत क्या है समझ पाएंगे। क्यों? ज्ञान है। ज्ञान के बिना हम सही गलत समझते नहीं हैं। जब अपनी बुद्धि में विवेक जग जाएगा, बुद्धि तो अपनी है लेकिन विवेक सोया हुआ है, अपने विवेक को जगाना पड़ेगा कि हम सही गलत को समझें और सही राह पर चले। और जब संयम होगा जीवन में तो शांति का अनुभव आएगा। शांति जो है ना, आप प्रेयर में गाए ओम शांति शांति शांति, केवल बोलने से शांति नहीं मिलेगी, हमें समझना होगा कि शांति मिलती है संयम दिखाने से। संयम जब हम संयम दिखाते हैं, संयम, तो हमें शांति की अनुभूति होती है। शांति दुकान में नहीं मिलती, पापा को बोल के 2 किलो शांति लेके रोज 1 चम्मच खाएंगे, शांति हो गई है नहीं, शांति की अनुभूति होती है। कैसे? संयम दिखाने से। कहाँ संयम दिखाओगे? अपने मन पे संयम, अपनी इच्छाओं पे संयम। कैसे संयम? इच्छाओं पे। जो आवश्यक है वही इच्छा करो, जो सही है। जो गलत है, जो अनावश्यक है, वो इच्छा मत कीजिए। संयम दिखाओ। अपनी वाणी पे संयम, अपनी भावनाओं पे संयम, अपने सेंसेस, इंद्रियों पे संयम जब दिखाओगे तो शांति की अनुभूति होगी। जब शांति की अनुभूति होगी अंदर, अपने अंदर, तो शांति से कौन मिलते हैं? शांति से सुख समाधान भी मिलते हैं। शांति का छोटा बेटा सुख है, शांति का बड़ा बेटा समाधान है। तो शांति जब होगी तो 2 आपको फायदे होंगे। क्या फायदे होंगे? सुख और समाधान। ये बाहर नहीं मिलते, ये अपने पास ही है सुख समाधान, क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है? आनंद में। तो बच्चों,
बस अंतिम बात यही समझो, हमने जो कुछ चर्चा किया उसका संबंध जीवन से है, आत्मा का संबंध भगवान से हमने चर्चा किया कि हम सभी जो कुछ है किसी के हैं, हम जो किसी के हैं उसे भगवान कहते हैं। परमानेंट कोई अपना होगा तो उसे भगवान कहते हैं। वो कौन है, अभी कहाँ है, हमें पता ना हो, ठीक है, लेकिन कोई तो होना चाहिए। जैसे मैंने बोला आत्मा क्या है, हम जो कुछ है उसे आत्मा कहते हैं, तो आत्मविश्वास आएगा। और हम जो किसी के हैं परमानेंट उसे भगवान कहते हैं। ये बोलना मेरा कोई नहीं है परमानेंट, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो ये तो अज्ञान है। हम कुछ तो है, तो हम तो ये नहीं बोल सकते मैं बॉडी हूँ जो थोड़े समय की गाड़ी है। हम जीव है जो परमानेंट भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, भगवान का अंश है। ये थोड़ा ज्ञान होने से हमें ये पता लगेगा सभी जो है अपने भाई बहन हैं। हम सबके प्रति सम्मान का भाव दिखाएंगे, ये भी एक मूल्य होता है। दूसरों के प्रति सम्मान का भाव, आदर का भाव, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स कब आएगा? जब हम समझेंगे सभी अपने हैं, दूसरों को पढ़ाया समझेंगे, फिर वो सम्मान नहीं दे पाएंगे। तो जो चीज़ें हैं, हम सब भाई बहन है कैसे? अपना माता पिता एक है, सबकी माता एक भूमि है, सबका पिता भगवान है। ये समझने से हम किसी का द्वेष नहीं करते। आज समाज में ये समस्या है, भाई भाई का द्वेष करता है, बच्चे एक दूसरे का द्वेष करते हैं, लोग समाज में एक दूसरे का द्वेष करते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं, मारते हैं, काटते हैं, दुख देते हैं। ये क्यों? क्योंकि दूसरों को पराया समझते हैं। लेकिन जब हम समझेंगे हम सभी एक फैमिली है, हम सभी एक फैमिली है। क्या बोलते हैं? वसुदैव, बोलो वसुदैव कुटुंबकम। ये अपने संस्कृत का विचार, महान विचार, कि हम सभी दुनिया को क्या मानते हैं? अपना फैमिली मानते हैं। कैसे मानते हैं? क्योंकि उसका आधार एक ज्ञान है कि हम सभी एक भगवान के संतान हैं, सबका मालिक जो एक है। वो समझने से हम सबके प्रति अपनापन और सेवा का भाव दिखा सकते हैं। बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए जो मैं बोल रहा था कि मोटिवेशन जो है क्या होना चाहिए? लर्निंग, अच्छा ज्ञान लेना है, अच्छा सीखना है, ताकि हम बाद में अच्छा काम कर पाएँ, तो अच्छी सेवा कर पाएँ। ये जो यदि होगा, आपको कभी तनाव, चिंता, एग्ज़ाम का भय नहीं होगा। आपके लिए पढ़ाई आसान होगी। क्यों? आपका काम क्या है? किताब खोलना, किताब पढ़ना, कुछ तो सीखने का प्रयास करना, आपको सुख देगा। अंक कितने आएंगे, एग्ज़ाम में कितना पोजीशन आएगा, वो सोचने की आवश्यकता नहीं, वो छोटी बात है। ज्ञान लेना इंपॉर्टेंट है। ज्ञान लेने का भाव होगा, आप वेकेशन में ही 2 घंटा पढ़ सकते हैं और बड़ा आनंद पा सकते हैं। थैंक यू, आपने बड़ा ध्यान से सुना। कुछ समझ में आया आपको? इससे कुछ फ़ायदा होगा? तो थैंक यू। मैं दोपहर तक आपके कैंपस में हूँ, किसी को बाद में कुछ पूछना होगा, मिलना होगा, तो मुझे खुशी होगी आपको कुछ ना मिलने में। थैंक यू ऑल। तो मैं अपने प्रिंसिपल सर और शिक्षकों का वापिस पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि हमें कुछ सेवा का अवसर दिया, और सबका धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ये बंद हुआ है। Thank you, sir, for your truly inspiring and enlightening words. Your guidance has surely motivated all of us, and in life we will learn from it with a strong values and positive mindset. Thank you, sir. Now I would like to request all of you please stand up.